Hello friends, this is Jaydeep here from the channel Spiritual Awakening. Today the topic is very interesting and very ground to earth. We all suffer, that is evident. We know that there is sorrow, there is problem, there is suffering in this world, and time to time we all suffer from this. Either we share with others, our relatives, our people nearby, they know it if it is quite of bigger magnitude, or otherwise a lot of time there is lot of sufferings which are inside. You even do not tell to the person who is near you. Might be a person very closer to you, staying every day, but they do not know that you are suffering. So there is a physical suffering, there is could be financial suffering, but there are mental suffering also, which we suffer every day, but we are not able to talk to others for different reasons. And who knows it? I know it. You know it within yourself. Now the question is that, is there any solution to curb the suffering? ये जो प्रॉब्लम, ये जो सफरिंग हम करते हैं, उससे निष्कृति पाने का कोई रास्ता है या नहीं? It is there, रास्ता तो है. The path is there, but I think we human beings do not follow. Once Sri Aurobindo was asked by his disciple that if God has created the world, then why he has given so much suffering in this world? Rishi Aurobindo said that, who said that God has given sufferings? He said that, उन्होंने बताया कि लॉर्ड बुद्धा ने तो सफरिंग से मुक्ति पाने का रास्ता बहुत पहले ही बता के गए थे. Lord Buddha has given the path not to suffer. He has shown the path long back. But do we human beings follow that path? Those who follow Buddhism, उनको पता है Buddhism का main principle क्या है, right? How to get liberated from sorrow. But do we human beings, after so many years of the advent of Buddhadev, do we follow his principle, that is teachings? I think no. And the reason is that because of that we suffer. हम लोग उसीलिए सफर करते हैं. लेकिन पॉइंट ये है कि हम लोग पहले से ही डर जाते हैं चीज़ों को लेके कि हम कैसे जो संसार में हैं, those who are living a life with families and others, how will be able to follow those principles or teachings. पॉइंट ये है कि हमें छोटी छोटी चीजें जिंदगी में इम्प्लीमेंट करनी है. We all are, we all know that there is a book called Atomic Habit. जिन्होंने पढ़ा हुआ है, they know it, and those who do not know it, there is a book, very good book called Atomic Habit. इसमें ऐसे है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है कोई भी आदत की, छोटे छोटे करके किसी और एक आदत के साथ लिंक करके हम हमारे जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. We can implement that by doing very, iterative way or attaching with some other habit which you are already following. तो मेरा भी मानना है वैसे करने से हम कर सकते हैं, और वो एक चीज है जो हमें करनी चाहिए. दूसरी बात है कि ऐसा कुछ रास्ता है जिसमें से सौरो या दुख बार बार मिले बहुत बड़ी तरह से, या जो भी हो चीजों को इंसान को तोड़ दे, उस तरह का दुख से हमें लिपटना चाहिए और उससे बाहर भी आना चाहिए. उसका कोई रास्ता है क्या? इज देयर एनी वे टू कम आउट ऑफ इट? अगर हम लोग एनालाइज करते हैं, अगर हम लोग पर्यवेक्षण करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि सफरिंग का मेन कारण बहुत पहले ऑलरेडी लॉर्ड कृष्णा हैज टोल्ड इन भगवद गीता. इन भगवद गीता लॉर्ड कृष्णा हैज ऑलरेडी टोल्ड. दिस इज द भगवद गीता. आई कीप रीडिंग इट वेरी लेटली. आई हैव स्टार्टेड टू रीड इट रेगुलरली. इतना अच्छा टूल मैनकाइंड को भगवान कृष्णा ने देके गए. आई थिंक वी शुड रीड इट एवरी डे. वी शुड कीप इट एज आवर कंपेनियन. और अगर हम भगवद गीता को भी देखते हैं, इफ वी स्टडी भगवद गीता, वी सी दैट अर्जुना वाज आल्सो फुल ऑफ sorrow, pain before the start of the battle of Kurukshetra. But Lord Krishna has spoken out all these 18 chapters of shloka to Arjuna to remove his what is called asakti. He got attached. तो ये पॉइंट है कि जो हमारी सौरो है, प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज एक्चुअली है
अटैचमेंट में। ये जो लोग पूछते हैं जगत में इतना दुख, इतना प्रॉब्लम क्यों है, इट इज नॉट बिकॉज दैट जगत में दुख है या देयर इज सॉरो इन दिस वर्ल्ड, इट्स नॉट दैट, बिकॉज वी गेट अटैच्ड, बिकॉज वी get binded to something what we do, we get the suffering out of it. ये मानने वाली बात है। जो नहीं मानते, जो इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो उनके लिए दुख तो है ही। बिकॉज देयर इज अ वेरी गुड सेइंग, आइदर यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड यू अवॉइड मेडिसिन, और आइदर यू डोंट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ नाउ, मेडिसिन विल कंज्यूम यू लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। ये दोनों में से कुछ है। अगर हम अभी एक्सरसाइज करते हैं, हेल्थ की ख्याल करते हैं, तो हमें बाद में जाके मेडिसिन या वो सारी चीजों में पैसा या खर्च नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं केयर करते हेल्थ का केयर, तो एक टाइम आएगा जब मेडिसिन हेल्थ का केयर रखेगा या मेडिसिन के ऊपर हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। सिमिलरली चीज है, आइदर हम ये सारा जो इतना ब्यूटीफुल ट्रूथ्स आर हिडन इन ईच श्लोकास ऑफ भगवद गीता, अगर हम इसको डेली कंपेनियन नहीं बनाते, नहीं प्रैक्टिस करते, नहीं पढ़ते, तो जिंदगी में कभी ना कभी दुख आएगा। कुछ लोगों के लिए दुख the sorrow या pain comes, it goes away, and for some it comes and it breaks. It depends on the person. तो अपने आप को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए आई थिंक इट इज वेरी नेसेसरी कि हमें भगवद गीता हर रोज पढ़ना चाहिए, हमें हर रोज इसको एज ए कंपेनियन रखना चाहिए। और मैंने और एक चीज देखा है, बहुत लोग, कुछ लोग है कि भगवद गीता को एज ए आइटम ऑफ भक्ति मानते हैं, भगवान कृष्ण का दिया हुआ उपदेश है। लेकिन भक्ति करके सिर्फ नहीं होगा, उसके साथ इंटेलेक्ट, एनालिटिक्स ऐड करनी पड़ेगी, हमें विचार करना पड़ेगा। इन मैनेजमेंट देयर इज अ सेइंग कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि अपने अंदर झांकना, जो भी हमने काम किया हुआ है, जो भी चीजें हमने किया हुआ है, इधर मैंने एक प्रोजेक्ट किया टीम के साथ मिलके, कुछ काम किया है, वो हो जाने के बाद वी शुड लुक बैक, देखने के लिए कि क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है। जो अच्छा हुआ है उसको कंटिन्यू करते हैं, लेट अस कंटिन्यू व्हाट इज हैपेंड गुड, और जो बुरा हुआ है, जो चीज ठीक नहीं हुआ है, उसको करेक्ट करके, कार्व करके नया तरह से कर सकते क्या। दिस सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वी कैन इंप्लीमेंट इन आवर ओन लाइफ। अगर आप भगवत गीता हर रोज नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ऐसे एक टाइम निकालो जब आप सोने से जाने से पहले 5 मिनट के लिए 1-2 लाइन पढ़िए, रख दीजिए, वो आदत बनती जाएगी। अचानक पढ़ने के लिए ज्यादा एफर्ट डाल के पढ़ना शायद इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे टाइम निकल के, लेकिन कभी भी इधर सोने पे जाना या सोने से उठने के बाद 5 मिनट, तो कभी ना कभी आपको देखना पड़ेगा कौन सा आपका आदत ऑलरेडी बना हुआ है, उसके साथ ये एटॉमिक हैबिट थोड़ा सा छोटा आदत ऐड कर सकते, नहीं कर सकते। तो ऐसे करके हमें करना है कि हमें इसको कंपेनियन बनाना है। साथ में हमें ये रोज पढ़ना पड़ेगा। जो श्लोक समझ में नहीं आया, जो थोड़ा अबव द हेड जाता है, उसको छोड़ दीजिए। कभी ना कभी अगर गुरु या कोई जैसे कृष्णा ने भी अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तो अलग बात है। जैसे पुरुषोत्तम योग या विश्व रूप दर्शन, हमें काफी सारी चीजें शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे कर्म योग है, कर्म योग हम समझ सकते हैं। सिंपल सी बात है, भगवान कृष्णा हैज सेड दैट वी कांट लीव वर्क, हमें काम छोड़ना ही नहीं है, काम करना ही पड़ेगा। जिंदगी जब तक है तब तक काम करनी पड़ेगी, टू डू द वर्क स्टिल वी आर लिविंग। लेकिन सफरिंग भी काम से ही आता है, बिकॉज वी गेट अटैच्ड। बड़े से पोजीशन में, बड़े से जॉब में पैसा ज्यादा कमा लिया, वी स्टार्ट गेटिंग अटैच्ड टू आवर डिफरेंट थिंग्स, एंड देन व्हेन दैट डिटैच और निकल जाता है, तो हमें दुख होता है। we suffer from that। ये फिजिकल लेवल पे हो सकता है, मेंटल लेवल पे हो सकता है। कोई अपने जिंदगी से निकल गया, आप इतना डूब गए, डिप्रेशन में चले गए कि यू ट्राई टू एंड योर लाइफ, वो भी ठीक नहीं है। योर लाइफ हैज बीन गिवन बाय योर पेरेंट्स, गॉड हैज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, तो हमें इसको ख्याल बनाए रखना है। तो इसलिए the point of this discussion overall which I wanted to very informally to discuss with you, कि जिंदगी में दुख है, जिंदगी में प्रॉब्लम है। लोग बोलते हैं भगवान ने संसार को बनाया तो दुख की दिया। इट्स एन एब्सोल्यूट पॉइंट। दुख की जरूरत इसलिए है कि ताकि हमारे अंदर जो शक्ति है उसकी परिचय हमें मिले। राइट, लोहे लोहे को काटता है और सोना तब भी सोना बनता है जब पिघलता है आग से। तो सिमिलरली दुख भी इसीलिए जरूरत होता है कि हमारे अंदर जब ये धक्का आता है तब हम हमारे अंदर झांकते हैं देखने के लिए। अगर नहीं झांकते तो फिर कोई बात नहीं, बिकॉज लाइक अदर एनिमल्स वी डोंट हैव दैट इंट्रोस्पेक्शन कैपेसिटी। तो जैसे मैनेजमेंट में है, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है, हमें भगवत गीता लेके बैठना है और फिर हमारे जिंदगी के साथ मैपिंग करनी है, रिलेट करना है कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मैं इंप्रूव कर सकता हूँ क्या, कहाँ पे मुझे अटैचमेंट आ गया था। भगवान कृष्ण भी गीता में बताया हुआ है कि
आसक्ति अगर हम रहित होके कोई काम करते, इफ वी डू आवर वर्क विदाउट डिटैचमेंट, देन ओनली it will not bind us and it will be able to avoid sorrow and pain from the work it produces, right? काम से जो हमारे को हमको ये जो प्रॉब्लम हो जाता है करने के बाद, अगर आसक्ति पैदा होती है तो जो प्रॉब्लम होती है उस सफरिंग से मुक्ति पाने के लिए एक ही रास्ता है, लेट अस रीड डेली भगवद गीता। कभी छूटती है तो ठीक बात है, फिर दोबारा चालू करिए, पढ़िए रेगुलर, एक एक श्लोक लीजिए, एक एक श्लोक पढ़िए, ट्राई टू सी दैट विच श्लोका इज टचिंग योर हार्ट एंड उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए, एक एक करके इंट्रोस्पेक्ट करिए। भगवद गीता सिर्फ भक्ति के हिसाब से पढ़िए, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ में एनालाइज करना, इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो मुझे तो लगता है कि जिंदगी में चलने के लिए हमें बहुत ही अच्छा सा एक औजार, एक टूल लॉर्ड कृष्णा ने इतना साल पहले हम लोगों को देखे गए हैं। हमें हर किसी को, घर में जितने भी लोग हैं सबको समझ में आए ना आए, बड़े को थोड़ा कोशिश करना चाहिए समझाने के लिए, जो भी समझ में आए वही समझाने के लिए, लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए। टेक केस स्टडीज। अपने जिंदगी में कुछ हो गया इंसिडेंट, घर के अंदर ही किसी को दुख हुआ है, किसी को कुछ जो भी हमें चाहिए नहीं उस तरह का इंसिडेंट क्रिएट हुआ है, उसमें से बैठ के एक साथ में बैठ के बात कर सकते हैं फैमिली मेंबर से कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, अंदर क्या हो रहा है, और इसको कनेक्ट कर सकते हैं ये सारे श्लोकों के साथ। जैसे भगवान अगर खुद के साथ भी है, जैसे अटैच हो गए काम पे, किसी पोजीशन से, किसी जॉब में, किसी कुछ पाना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, काम करते हैं लेकिन फल की चिंता नहीं करनी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, लेकिन मुझे लगता है जो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल है, आइटरेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन, ये दोनों चीजों को इंट्रोस्पेक्शन एंड आइटरेशन के साथ थोड़ा थोड़ा करके हम हमारी जिंदगी को इंप्रूव कर सकते हैं। और दुख का क्या होगा, एक बार में दुख खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, दुख आएगा, दुख इज सॉरो, पेन, ये सारा लाइफ में पार्ट एंड पार्सल है, वो आता रहेगा, लेकिन हम इनका जो डेप्थ है हमको हिट करने का, उसको हम कम कर सकते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। बहुत ही इनफॉर्मल तरह से मैंने बात किया, शेयर करिए, भगवद गीता कंपेनियन बनाइए, लॉर्ड कृष्णा को कंपेनियन बनाइए, रीड इट, इंप्लीमेंट इन योर लाइफ। अगर आपको अच्छा लगा है, शेयर दिस एंड सब्सक्राइब द वीडियो चैनल। थैंक यू वेरी मच।